Assalamualaikum everyone. We're back again with another episode of Drama Log. We're going to be reviewing Nadan today. Nadan just finished recently. And I'm joined by Faraz from Drama Pakistani. Sunny's not here. She's on vacation. So are you there, Faraz? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सना? Alhamdulillah, how are you? और आज ठीक ठाक. आज क्लास में बस 2 ही बच्चे आए हैं. Yeah. यूजुअली जब होता है ना क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं आते तो छुट्टी दे दी जाती है. तो सोचा था हमने कि हम बहुत सारे अभी ड्रामास करेंगे, बट थोड़ा टेक्निकल मसला आ गया. सो बट वी विल डू नादान बिकॉज नादान का फिनाले डिजर्व करता है कि उसके ऊपर बात की जाए. और काफी क्या कहते हैं उसको, शेरे हासिल किस्म की बहस की जाए. तो लेट्स दैट मीन्स कि एक अच्छी डिस्कशन की जाए नादान के फिनाले पे. पहले सीन से कहाँ पे? शिकागो में. Yes. And I'm so jealous of Sunny क्योंकि he's having fun. बताएं जरा सबको, हमारे लिसनर्स को बताएं कि सनी गई किधर है. कैंकून गई है. कैंकून किधर है? मैक्सिको की ईस्ट कोस्ट. मैक्सिको जाके वो क्या कर रही हैं वहाँ? बीच में नहा रही हैं. Yeah, I mean, they have really nice resorts there. So people like, listening in anywhere in the world, they should go to Cancun. It's not even that expensive, actually. They have all-inclusive resorts. It's really nice. Like my kids love it. They always ask me to go back. Because so जो लोग जा सकते हैं यूएस या जो लोग मैक्सिको जा सकते हैं, मैक्सिको, हाँ, जो लोग मैक्सिको जा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जरूर जाएं. और जो लोग नहीं जा सकते, वो जो पाकिस्तान में है वो कराची आ जाएं. और कराची आके मैं उनको लेके जाऊंगा किसी अच्छे बीच पे. कहाँ पे? Why don't you build a resort in Karachi? नहीं भाई, मैं खुद पाकिस्तान से निकल जाऊंगा कुछ अरसे में. मैं क्या रिजॉर्ट बनाऊंगा? अरे भाई रहने दो बहन, बस जो हुआ ना 1-2 दिन में. Very nice resort, like beautiful, because Pakistan has like beautiful beaches. हाय सना, क्या दुखती रग पे हाथ फेरी हैं आप. आपको नहीं पता कि 1-2 दिन में जो हुआ ना, उसकी वजह से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है. Like I've heard about it, बहुत सैडनेस about it, and Islamabad में जो भी हुआ है कि हाँ. So the issue that I have is कि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है या कौन गलत है या कौन मजाक उड़ा रहा है. लोग इतने इनह्यूमन हो चुके हुए हैं कि they don't realize that it's normal human being that are being killed or that are being fired at, or that those who have a family. Like 100 people were killed. हाँ ये 100 है कुछ. That's 100 families affected. हाँ, और and the worst part is, and the worst part is कि जो opposition party है या दूसरे लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, which is so inhuman. That is horrible. I mean, क्या what can... And it's not actually a drama. It's basically a real life thing that's going on. क्या हम ड्रामे में बोलते हैं ना कि मरना नहीं है या आखिरत का हिसाब नहीं. But anyway यार, नादान पे बात कर लेते हैं. Let's talk about नादान. So शुरू करें आप नादान के बारे में. क्या हुआ और कौन से सीन से हम शुरू करेंगे? We can give the credits first. Written by Sajji Gul and directed by Mehreen Jabbar. And there's Ramsha Khan as Dr. Tabir, and Ahmad Ali Akbar as Inspector Heather. And there's Hamas Shoaib playing the role of Osama, and then there's Kashif Hussain is his name, right? The guy, Tayyib, Kashif Hussain. So yeah, he was really good. So they're like kind of like the main characters here. And then so I loved the finale. Like it was the best episode of all of them, the most thrilling, especially like the whole mob gathering scene. It was really amazing. The way it was shot, even I was getting nervous. The way the people were coming into the police station, and then the Heather takes Tabir to the house, and they hide there. And then like when they're there, she says, "Okay, just give me up, just let me go to them." Like it was really bone chilling. अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप ये देखें कि जिस तरह से जो पहला सीन था, मैं जब उस सीन को देखता हूँ ना तो मुझे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है. कुछ जस्ट एक तो ये सबसे बड़ी दाद देनी चाहिए साजी गुल और उससे ज्यादा मेहरीन जब्बार साहिबा को, कि जिन्होंने वो जो एक एटमॉस्फेयर है या जो एक समा है कि
जब एक मॉब लिंचिंग हो रही होती है, वो किस तरह से लोग जमा हो रहे होते हैं, यू नो, इट्स सो मेनी पीपल गोइंग आफ्टर वन पर्सन. उस इंसान के दिल में या उस इंसान के जहन में क्या चल रहा होता है, जो खौफ, जो Can you टेरर imagine? I mean, होता है, we've वो seen हमने some, महसूस किया. yeah, and we've seen some videos that have been viral. I don't know if you remember this Kurdish girl from Iraq. I think she was also हाँ like lynched like that. हाँ She हाँ, was lynched to death. And I know there was है a ना. couple in Pakistan too. बहुत, हाँ, बहुत The दफा. boy who was from the Ahmadi, I think. यस. Yeah, I don't remember his name, but he was also. Yeah. बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट है. मतलब एक वो आज से कुछ 10-15 साल पहले हुआ था, रमजानों में हुआ था. देवर टू ब्रदर्स, बट ब्रदर्स करके कोई नाम था, एंड देवर, उफ, उसकी तो वीडियो भी यूट्यूब पे आई थी. और इतना, And can you उफ, imagine the people who are making the video? आई एम सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में. एनीवे, हाँ, तो वो बट ब्रदर्स का आया था. आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट एंटायर सीक्वेंस. मतलब मैं अभी तक उसको याद करता हूँ तो यू नो, it makes me sick and it makes me What feel makes me so sad. angry is that these people, like, there are people who are making the video. हाँ, there were I people mean, who were making the video as well. I mean, yeah, it's good. Like, I guess I should say, okay, yeah, they're making the video so it can go viral, so people can get caught and they know what's going on. But still, like, no one's helping them. They're just making a video. ये Like, दिस इज, एक टीवी शो आया था. आपको एक बात बताता हूँ, एक टीवी शो आया था. आई वुड रेकमेंड इट टू एवरीवन इफ यू आर इनटू डार्क काइंड ऑफ शोज एंड स्टफ. देयर इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स कॉल्ड ब्लैक मिरर. तो उस शो में दे हैव डिफरेंट एपिसोड्स बेस्ड ऑन द हार्मफुलनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट्स हैपनिंग अराउंड अस. तो उस शो में ये सीन भी था कि देयर वाज एन एपिसोड डेडिकेटेड टू people who would make mobile phone videos instead of helping others. So you watch that. But coming back to Nadan, वो जो सीन था, और ऊपर से जो काशिफ हुसैन ने उसमें एक्टिंग की थी, जिस तरह से उसने कहा कि ये डॉक्टर ताबीर है जिसने मारा है, और हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, और किस तरह से फिर वो पुलिस स्टेशन पे अटैक करता है. वो सीन, वो एक मौका भी आया था बीच में जब जो इंस्पेक्टर होता है अहमद अली अकबर, वो एक पुलिस वाले की कस्टडी में देते हैं डॉक्टर ताबीर को कि आप जो है इसकी हिफाजत करें. एंड यू सॉ दैट कि वही इंस्पेक्टर उल्टा उसको मारने लगता है, जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया होता है इंस्पेक्टर का. वो कहता है मेरे पीर को आपने मारा, तुम्हें मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. कैन यू बिलीव दैट? Yeah, I mean, and it happens in real life. है ना. हुआ था एक इंसिडेंट, ऐसा हुआ था कि एक गवर्नर था पाकिस्तान का, उसको उसके गार्ड ने मार दिया था. उसके गार्ड ने ही मार दिया था. someone who was supposed to help them, someone who was supposed to protect them, उसी ने मार दिया. तो यही एग्जैक्टली सीन हो. तो मेरे हिसाब से तो कमाल डायरेक्शन की है मेहरीन जब्बार साहब ने कि हमें महसूस करवाया है. और मेरे ख्याल से एक डायरेक्टर की जो पहचान है, एक डायरेक्टर की क्राफ्ट की जो अगर एक आप पिनिकल कहेंगे, वो यही है कि उसने हमें महसूस करवाया है. और मुझे तो लिटरली देख के कुछ हो रहा था, खास तौर पे काशिफ हुसैन ने उसमें जो एक्टिंग की है. ये तो लड़का कहाँ से निकाल के लाएंगे ये. एक दो ड्रामों में ही आए हैं पहले, लेकिन इस ड्रामे में तो इन्होंने गजब ढा दिया भाई. जिस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह का खौफ, जिस तरह का टेरर ये दिखा रहे हैं, और जो जहनियत दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत कमाल की एक्टिंग थी. And you know, the way he says कि बस हमें दे दो, ताबीर दे दो हमें तुमसे कुछ नहीं है. Like the expressions on his face. Wow. That was evil, huh? हाँ, बहुत evil. मतलब ये सीन, मतलब पहले फ्रेम से ही लेके आखिरी फ्रेम तक, जो अभी आगे और भी सीन्स पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले सीन से ही लेके आखिरी सीन तक ये एपिसोड ही अपने आप में बड़ी कमाल थी. तो अगला कौन सा सीन फिर सना आप कहेंगी जो आपको लगा कि they run and hide in that house? So that was a good scene. And when Heather is trying to comfort Iqtidar, tells her to take deep breaths. कैसे वो, अच्छा है ना, कैसे it was a romantic scene, but जब वो मैं सीन देख रहा था ना, तो मुझे उस वक्त आप याद आई. मैंने कहा यार ये सना ने देखा होगा, और सना का शी रियली लाइक्स रोमांस, तो सना को ये सीन पसंद आएगा. द वे ही कंसोल्स हर, और जिस तरह उसको कहता है ना, इतने सारे केओस में वो आराम से उसको काम डाउन कर रहा होता है. तो मुझे वो सीन, मतलब like it really shows that a police inspector needs to be calm. That's part of his training too. He needs to be calm in these situations, because if he's not, how is he going to make good decisions?
एग्जैक्टली और फिर शायद उसके ऊपर वो याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो जो एक ख्वाब देखता रहता है, एक नाइटमेयर देखता रहता है, तो ये उसकी वजह से भी उसके ऊपर एक एडेड वो था कि नहीं मैं अब किसी और बेगुनाह को मरने नहीं दूंगा। Yeah, true. तो ये और अच्छा उसमें फिर आप ये देखेंगे जिस तरह से वो एक चेस सीन होता है, एक साइड में बैकड्रॉप पे वो भी चल रहा है कि पकड़ा गया है, पता चल गया है कि तैयब नहीं वो दी है, दवाई दी है, तो ये भी एक एक अपने अंदर एक स्टोरी चल रही होती है। But the only thing is like Tayyab ne, बस वहाँ छोड़ दी, the tablets in the car. That was the mistake हाँ he वो तो made. एक क्लू था ना, वो एक क्लू था कि वो हाँ, मतलब जो कहानी को एंड करने के लिए क्लू था, तो उससे गलती हो गई, हो जाता है, बड़े से बड़ा मुजरिम भी जो है वो गलती कर देता है, of तो course. उसने गलती कर दी, Yeah. ये गलती उसकी थी जिसकी वजह से वो पकड़ा उसको। फिर Yeah. किस तरह से वो अच्छा वो भी बड़ा होशियार था, वो जो इश्क मुर्शिद में जो आया था ना फजल बख्श, I did वो not इस watch ड्रामे में भी था ना। अच्छा उसमें एक बड़ा आप देखिएगा वो कैरेक्टर एक ऐसा है, इस इश्क मुर्शिद में कैरेक्टर ऐसा है फजल बख्श करके, वो बहुत मशहूर हुआ था अपनी इनोसेंट एक्टिंग की वजह से, इतना मशहूर हुआ कि सब उसको फजल बख्श के नाम से पहचानते हैं। तो वो जो उसका कंसिस्टेंट होता है वो बताता है उसको कि भाई तुम जाओ जाके ना ये जो ड्राइवर है उसका जो दोस्त है वो वही है जो जिसकी बेटी, तो ये भी एक अच्छा उन्होंने उसको वो एक कनेक्ट बड़ा अच्छा किया। Yeah. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दैट, वो बैकड्रॉप में जैसे चल रहा है, लेकिन फिर ये भी होता है कि वो पूरा जो सीन है जिस तरह से वो बाइक में जाता है उसको लेके, और फिर वो जाते हैं उस हॉन्टेड हाउस कह लो या खाली घर में जाते हैं, फिर दरवाजों में वो नहीं देखा कि दरवाजों मतलब कमरों में कैसे आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से It was मूव very कर रहे हैं, well directed. वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। Yes. And then I loved how Mrs. Pearney stepped up. She वो चले वो हाँ helped वो एक everyone. पढ़ते हैं हाँ, अभी उसकी तरफ जाने से पहले एक छोटा सा सीन मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट होल्ड करना जरा, आई एम सॉरी यार। Okay. एक छोटा सा सीन था जिसमें वो सीढ़ियों पे खड़ा होता है नीचे तैयब और ये लोग ऊपर होते हैं, और तैयब स्पेक्टर को और ताबीर को आवाज लगा रहा। अब आप इमेजिन करें इस पूरे सीक्वेंस को कि एक पूरा घर खाली है जिसमें आप दो लोग हैं जो अपनी जान बचा रहे हैं और नीचे मॉब आया हुआ है, और वो किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करता है काशिफ हुसैन तैयब के, संतरी इसको छोड़ दो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और उसके चेहरे पे एक एक होती है स्माइल, Yeah, it was in like an खौफ और smile. इवल स्माइल, वो भी बड़ा जालिम सीन था। तो बस हाँ ये था। फिर उसके बाद जाहिर है फिर वो एक आता है कि वो आपकी जो वो है डॉक्टर ताबीर, इस केओस में भी देखें कि वो डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटती। Yeah, जब and I liked तैयब को गोली the लगती है, fact that Heather shot him in the leg, which shows that don't just shoot, even if it's a like criminal bhi hai, don't shoot him, on his head or his body, on his abdomen or heart, ke he dies right away. Always shoot on the leg. That's the teaching they get. मारना था तो वो मार भी सकता था सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि एकदम से पीछे आ गया था। Like हमेशा, like that's what the training is. कि always, if possible, try to shoot on the legs. हाँ So that तो they don't die. प्लस एक और चीज भी थी कि डॉक्टर हैदर जो वो इंस्पेक्टर हैदर जो थे, ही इज ट्राइंग टू फॉलो द लॉ, ही इज नॉट डूइंग द एनकाउंटर। और वो बड़ा मतलब वो जो उसमें सीन आता है, एक मिनट होल्ड करें यार, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, अभी बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है बीच में। अच्छा वो जो सीन है ना आपने जिसके बारे में जिक्र किया था कि जब उसको गोली मारता है टांग पे, और डॉक्टर ताबीर क्या करती हैं फिर? Yes, she goes and helps him, and I'm actually surprised that the police did not call for the paramedics themselves. It was actually Dr. Tabir who went and put first aid right away to stop the bleeding, and that is what us doctors are supposed to do, regardless of the patient. Like, we don't care what the patient does, if they're criminal or not. We're supposed to be taking care of our patient, no matter what, and that is the oath that we've taken. उसको क्या कहते हैं, उनका कुछ नाम होता है ना, यहाँ तो कहते हैं हिपोक्रेट ओथ, या पता नहीं क्या कहते हैं। Oath. Yep, Hippocratic oath. हिपोक्रेटिक ओथ क्यों कहते हैं इसको? Hippocrates किया ना? मतलब Like the philosopher Hippocrates.
ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हिपोक्रेसी क्या कहते हैं इसको, दोबारा बोले, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था इसे। Hippocratic oath. It's not hypocrisy, no. सच्ची में मैं उसको हिपोक्रेसी समझ रहा था कि हिपोक्रेट होता है ये, क्या है ये। तो ये कहाँ से, जरा बताएंगे क्या क्या होता है ये? It is basically taken by physicians all over the world. And it is basically after the Greek physician Hippocrates. So it is named after him. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यार, मेरी 41 ईयर्स ऑफ एज में आके ये मुझे समझ में आया कि इसको हिपोक्रेट, वो वाला हिपोक्रेसी वाला ओथ नहीं है, Yeah, ये उस आदमी के नाम के HIPPO ऊपर है. है। HIPPO. हाँ, अब तो Yeah. And अभी तक I'm तो हम looking यही him up. समझते Like, फिर रहे I'm थे। actually looking him up. He's actually before Christ, 462 to 370 before Christ. Wow. BC. और वो ओथ कहता क्या है, क्या होता है उस ओथ में, कहते क्या है? It's a long one. It's like basically it says that do no harm. Basically, first do no harm is one of them, and then I will abstain from all intentional wrongdoing and harm. Basically, तो ये आपने भी लिया था? yes, I swear to fulfill the best of my ability and judgment. I will respect the scientific gains of the physicians. I will always remember that there's art to medicine as well. Like, so basically, it is about just not about medicine only. It's about the art of medicine as well, because warmth, sympathy, being compassion can actually heal a person as well. So it's all combined with क्या medicine. बात है, क्या बात है। Yeah. तो ये देखें, ओथ भी बता दिया। दैट वाज, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा सीन था वो, कि वो जिसे कहते हैं ना कि आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया उसने, बुराई का जवाब अच्छाई से दिया। और ये हम पढ़ते भी आते हैं कि बुराई का जवाब बुराई खत्म नहीं करती, Yes. बुराई को सिर्फ आप अच्छाई से खत्म कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो सीन आता है जिसमें तैयब साहब को हॉस्पिटल में बंद करते हैं, और वहां पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि लोग आ गए हैं, And then he's scared, huh? And है initially, ना? initially he thinks that people are here for Tabir, and he laughs, हाँ, and then अगेन मिस इवल स्माइल। and then he freaks out. क्या एक्टिंग कर रहा था यार वो He's सना, amazing. कैसी I mean, man, that man is amazing. क्या क्या एक्टिंग कर रहा है, जिस तरह से वो कह रहा है मुझे बचाओ डॉक्टर, यार क्या वो बंदे की एक्टिंग थी। मैं वो I सीन need देख to रहा हूँ, मैं talk कह to रहा him हूँ about this character. किससे, काशिफ हुसैन से, Yeah, can you give me his number? है ना? या आई डोंट हैव हिज नंबर, ऐसा तो नहीं है You कि know, नंबर है, बट ऑफ she's कोर्स वी always कैन asking मैसेज for हिम, someone's number. we can talk to him, we can message him, and we can Yeah, tell him that वही तो मैसेज कैसे I've करेंगे? messaged Marine, मैसेज कैसे I've करेंगे? messaged Marine, मैसेज अब चल गया नेट, हमारा इंटरनेट चल गया अब। नहीं, इंटर कहाँ पे मैसेज करेंगे? इंस्टाग्राम पे करेंगे, ट्विटर यार पे कोई शायद करेंगे, ऑन फेसबुक पे कोई करेंगे। चेक ही नहीं करता मैसेज अपना। नहीं नहीं, करता है, चेक करेगा, अच्छा। करेगा चेक। एनीवे, बट अगेन जैसे भी हो, हमारा क्या, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, हमारा पैगाम है अप्रिसिएशन जहां तक पहुंचे, लेकिन And बड़ा then, जालिम ड्रामा you था। know, I loved how Mrs. Peony stood up and the यस। message that she gave. The message was very universal. And I liked how the writer also connected it with an Islamic concept as well. This is not even allowed in our religion as well. Okay? The people do not become judge, jury, executioners. You don't take the law in your own hands. And we've never seen any example of this, even in the life of our prophet, that this ever happened, right? Like, nothing like this ever happened. There's always like a judge who gives a decision. So not only because they were like, well, okay, we're gonna now kill Kashif Hussain, what's his name? Tayyab. And then they're like, no, like you cannot, even if the culprit is a criminal, like you think, you're 100% sure that he is a criminal, even then, this mob mentality and lynching does not apply here. You cannot do that. एग्जैक्टली। और वो भी अच्छा, उसने जो सफिया हैं, जो उनकी वाइफ थी, पीर की वाइफ थी, जो पीरनी बन गई, जो कहती है ना मैं जानशीन हूँ, कन्विक्शन से, और कितने, मतलब हर ये मेरे ख्याल से एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है, और खासा है कि वो हर एक्टर से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस निकलवाता है। हमने रमशा खान को देख रहे हैं दुनियापुर में, वहां पे शी फॉल्स फ्लैट, मजा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग, है ना, एक्सप्रेशंस देख लो, एक्टिंग देख लो, और छोटी सी सीरीज थी ये, बहुत छोटा सा शो था, 8 एपिसोड्स का ड्रामा था ये, और जो 8वीं किस्त थी, मैंने ऑनलाइन चेक किया था Really? I thought it was episode. लास्ट। Okay. हाँ नहीं, हाँ तो 8 एपिसोड्स का ड्रामा था ये, लेकिन क्या कमाल पेस थी, और तेजी तेजी से इन्होंने उसको
बिल्कुल कल्मिनेट किया, खत्म किया। मैं बड़ा जबरदस्त ड्रामा रहा है ये मेरे हिसाब से तो। और मुझे बड़ा मजा आया साजिद गुल की राइटिंग। और अगर हम अ, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक पे बात ना करें तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी। कैसा लगा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक? It was amazing. एक तो वो गाना था नॉर्मल सा सिंपल, जो ताबीर और डॉक्टर इंस्पेक्टर हैदर के बीच में होता है, रोमांटिक किस्म Yes, का that was सॉन्ग a था, cute one. Yes. है ना? और दूसरा एक वो बैकग्राउंड म्यूजिक था जिस तरह से वो टिन 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 टिन, वो That बड़ा एलिवेट किया that adds to the thrill. उसको। यस। तो ओवरऑल फिर आप क्या कहना चाहेंगी नादान के बारे में? I mean, everyone should watch it. It gives a good message. And it gives it across really well. It not only gives the problem, but also gives a solution to the problem. That like everyone needs to step up. And we should not be misguided, or we should not become gullible to these people who instigate these kind of like mob behavior. और आपकी रेटिंग क्या होगी इस ड्रामे के लिए? 8.5 to 9. 9 actually. I'll give 9. जबरदस्त हो गया। मेरी एक सजेशन है इस ड्रामे को लेके, मेरी भी 9.5 की रेटिंग में दूंगा इस ड्रामे को ओवरऑल। एक सजेशन मेरी है कि इतना प्यारा मैसेज है इस पे, तो इस ड्रामे को पाकिस्तान टेलीविजन जैसे कहते हैं ना, पीटीवी, उस पे भी दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी रीच जो है वो उन इलाकों में है जहाँ पे मॉब लिंचिंग और इन चीजों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये मेरा सजेशन होगा। Achha, I think बट ओवरऑल other dramas or other channels are not aired in other remote areas. हाँ, क्योंकि वो ये चैनल सैटेलाइट चैनल्स होते हैं ना, केबल के चैनल होते हैं, सैटेलाइट चैनल होते हैं, काफी अच्छी कवरेज है, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी एंटीने पे आता है। याद है पुराने जमाने में एंटीना लगाते थे छत पे, वो हम लोग आवाजें लगाते थे, आया साफ आया, घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ। ये काम मैं करता था, मेरे अंदर बड़ा कीड़ा था इन सब चीजों को। डिश लगानी आती थी मुझे, एंटीना लगाना आता था। बहर कैफ, तो अब मेरे ख्याल से ड्रामा खत्म हो गया है। आई थिंक कुडोस टू डायरेक्टर, द राइटर साजिद गुल, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो, और स्पेशली सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जिन्होंने मॉब लिंचिंग सीरीज में ये ड्रामा भी ऐड किया। अब नेक्स्ट जो ड्रामा आने वाला है मॉब लिंचिंग सीरीज में, इट्स कॉल्ड तनमन नीलो नील। इट स्टार्स सहर खान एंड शुजा असद, जो नेक्स्ट मॉब लिंचिंग सीरीज में आएगा ड्रामा। होपफुली नेक्स्ट सैटरडे को ही ये एयर होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम गोइंग टू बी वॉचिंग इट। हमारी तरफ से ये अभी इतना ही है। No, वी do you know who's मिस्ड, directing it? या who's directing it? I think Saifi Hassan है गालिबन। I'm not sure. I'll check it, but we'll check it and we'll post You it. know who the writer is? नहीं, मुझे राइटर भी नहीं पता, मैंने ज्यादा नहीं देखा, बस यही देखा था कि तनमन नीलो नील नाम है उस ड्रामे का। एंड इट्स अ फन काइंड ऑफ अ मॉब लिंचिंग थिंग। इट्स बेसिकली अबाउट अ गर्ल who puts stories on TikTok and Instagram and she gets famous and then she gets lynched. तो ये, हाँ, it's based on that. तो एनीवे मैं तो रेकमेंड करूंगा, आप भी देखिएगा। वो भी छोटा ड्रामा होगा, शॉर्ट ड्रामा होगा, लेकिन सनी को बड़ा मिस किया हमने आज। सनी वैसे है ना, सनी मजे कर रही है, वो हमने सनी को मिस किया, सनी हमें मिस नहीं कर रही होंगी बिल्कुल No भी, way. है ना? वो तो तस्वीरें भेज रही हैं हम इंस्टा उस पे व्हाट्सएप पे कि देखो मैं यहाँ बीच पे क्या कर रही हूँ। एनीवे, या तो सना, वुड यू लाइक टू रैप अप? Yes. So yeah, inshallah, we will see you guys again soon with another interview, or sorry, another review of another drama, only on Drama Log. So keep following us, keep subscribing, and and stay tuned. All right. Allah Hafiz. जबरदस्त। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.